Welcome to my channel AgriMade Easy. This is Swati, and from today onwards we are going to start H. Dubey series from this book, a textbook of fungi, bacteria and viruses by H. Dubey. So, in today's lecture, we are going to cover the first chapter of H. Dubey, that is Introduction to the Living World. So, before introducing to the living world, let's first know what is life and what are organisms. Okay, so first, what is life? Life refers to the process like growth, reproduction, metabolism, etc. जबकि organism क्या होता है? These are any living thing that performs these processes. What processes? Like growth, reproduction, metabolism, etc. So life is basically a state that makes something living. जैसे कि स्टेट लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से क्या है, वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज लिविंग. बट व्हाट इज ऑर्गेनिज्म? ऑर्गेनिज्म इज अ लिविंग बीइंग who is performing all that processes, and that organism can grow, use energy to respond to its surrounding and carry out its life processes by itself. So I think it's clear कि life and organism में क्या difference है. Okay, so in H.C. Dubey it's written that life may be considered either as a property or as a manifestation or as a state of an organism. Okay, as I told you, life, what is life? Life is a state that makes something living, while organism is that living being. ठीक है? Okay, then after, now let's see what are the characteristics of an organism. So organism की क्या क्या characteristics होते हैं? So first of all, जो ऑर्गेनिज्म है दैट शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से ही डिराइव होना चाहिए. दे नेवर डेवलप्स डी नोवो. ओके, सेकेंड वन इज दे शुड मेंटेन ग्रोथ बाय मेटाबोलाइजिंग फूड एंड एनर्जी. ओके, उनमें ग्रोथ की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ग्रो करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए. Third is independent unit of reproduction, means they should be able to reproduce. Fourth is they should be composed of macromolecules like protein, nucleic acid and carbohydrates. Then living organisms क्या होते हैं? They are metastable. Metastable का मतलब क्या है कि a state that is stable for some time but not permanently. So this was about the life, organisms and their characteristics. Now we'll see what are the classification of living things. So scientists ने living things को common sense के basis पे दो में classify किया. First is plants and second is animals. Okay, so अब देख लेते हैं कि plants and animals के क्या क्या characters होते हैं. Okay, so plant हमें पता है that plant do not move but animal moves. और plant का जो mode of nutrition होता है वो क्या होता है? Autotrophic. वाइल एनिमल्स का क्या होता है? हेट्रोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या हुआ? ऑटोट्रॉफिक का मतलब कि वैसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स. जबकि एनिमल्स होते हैं हेट्रोट्रॉफिक. हेट्रोट्रॉफिक यानी कि दे आर डिपेंडेंट ऑन सम अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड. ठीक है. देन सेल वॉल की बात करें, देन प्लांट्स में सेल वॉल होता है एंड एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता. उसके बाद अगर साइज़ की बात करें, देन प्लांट्स का कोई डेफिनेट साइज़ नहीं होता, वाइल एनिमल्स का एक डेफिनेट साइज़ होता है. ठीक है. अर्लियर क्या किया गया था कि लिविंग थिंग्स को बस क्लासिफाई कर दिया गया था कि देयर आर ओनली टू लिविंग थिंग्स, दैट इज़ प्लांट्स एंड एनिमल्स. लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हैकल आए एंड हैकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया. एंड इनके अकॉर्डिंग क्या था? देयर वर टोटल 3 किंगडम्स. That is, first is plants, animals and Protista. So Protista was added by him. Protista जो kingdom था, this kingdom was added by him, and rest of the 2 were discovered earlier only. ठीक है. So according to Haeckel, there were 3 kingdoms: plants, animals and Protista. So 1969 में क्या हुआ? R.H. Whittaker आए and इन्होंने propose किया 5 kingdom classification. According to him, there were total 5 kingdoms. So what were those? Let's see. First was Monera. Monera includes prokaryotes like bacteria and cyanobacteria. Cyanobacteria means blue-green algae. Second was Protista. Protista includes all those unicellular eukaryotes. ठीक है. Third was fungi. Fourth was plantae and first was Animalia. ठीक है. So R.H. Whittaker placed
दिस ऑल किंगडम्स इन दिस मैनर. ठीक है. So Whittaker recognized total two kind of cellular organisms. What were those? First were prokaryotes and second were eukaryotes. So prokaryotes and eukaryotes पहली बार किसने recognize किया था? Whittaker ने recognize किया कि there are two kinds of cellular organisms. First is prokaryotes and second is eukaryotes. So prokaryotes are what? They are unicellular organisms, while eukaryotes are those who are multicellular organisms, यानी कि they have more than one cell. ठीक है. So now let's understand the difference between the prokaryotes and eukaryotes. So if you talk about the nucleus, so eukaryotes have nucleus while prokaryotes does not have nucleus. अगर सेल ऑर्गेनल्स की बात करें सो यूकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जबकि प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं. सेल ऑर्गेनल्स में क्या क्या आता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडीज एट्सेट्रा, ये सब. ठीक है. और अगर हम राइबोसोम की बात करें सो यूकैरियोट हैव 80S एज वेल एज 70S टाइप राइबोसोम while prokaryotes have only 70S टाइप राइबोसोम. सो 80S टाइप राइबोसोम में क्या आता है? इसमें दो सब यूनिट होती है, एक होता है लार्जर सब यूनिट और एक होता है स्मॉलर सब यूनिट. सो जो लार्जर सब यूनिट होगी 80S की वो क्या होगी? 60S. एंड जो स्मॉलर सब यूनिट होगी 80S की वो क्या होगी? 40S. इन द सेम वे अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें सो इसमें भी लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट होती है 70S की. सो लार्जर सब यूनिट 50S होती है एंड स्मॉलर सब यूनिट क्या होती है? 30S. ठीक है. अगर हम सेल वॉल की बात करें सो यूकैरियोट्स में जो सेल वॉल होते हैं दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज और काइटिन, वाइल प्रोकैरियोट्स में किससे बने होते हैं? म्यूकोपेप्टाइड, पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन, इससे बने होते हैं प्रोकैरियोट्स में. अगर फ्लैगेला एंड सीलिया की बात करें देन यूकैरियोट्स में क्या होता है? 9+2 फाइब्रिलर स्ट्रक्चर होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? दिस आर मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन मॉलिक्यूल्स ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर. सो उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे वो थे कार्ल वोज. कार्ल वोज ने प्रपोज किया था 3 डोमेन सिस्टम. ओके. सो एंड इन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया था. सो 3 डोमेन क्या क्या थे? 3 डोमेन वर बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया. ठीक है. बैक्टीरिया में तो हमें पता है क्या आएंगे, देन आर्किया एंड देन यूकैरिया. और यूकैरिया में क्या थे हमें पता है? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया. ठीक है. सो अर्लियर क्या था कि प्रोटिस्टा में ये सारे जितने भी थे स्ट्रैमनोपिला, क्रोमिस्टा एंड प्रोटोजोआ वर प्लेस्ड, बट नाउ these are regarded as a separate kingdom. ठीक है. So now let's see the difference between the bacteria and archibacteria. Actually bacteria and archibacteria both are bacteria only, लेकिन इन दोनों को अलग रखा गया इसलिए बिकॉज जो आर्कीबैक्टीरिया के जो बहुत सारे कैरेक्टर्स थे दे वर सिमिलर टू द यूकैरियोट्स. ठीक है. लेट्स सी. So if we talk about the cell wall, so in bacteria there is peptidoglycan present in the cell wall, but in archibacteria the peptidoglycan is absent. ठीक है. While in bacteria if we talk about the lipid in the membrane, so the fatty acid is linked to the glycerol by ester bond, while in archibacteria isoprene is linked to glycerol by ether bond. वहीं पे अगर हम राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम दोनों में ही 70S होगा बट द कंपोजिशन विल बी डिफरेंट. सो बैक्टीरिया में क्या होगा? बैक्टीरिया में 16S जो RRNA होगा दैट विल बी सिमिलर टू द प्रोकैरियोट्स. ओके. वाइल इन आर्कीबैक्टीरिया जो 16S RRNA है दैट विल बी सिमिलर टू द 18S RRNA ऑफ यूकैरियोट्स. ओके. एंड इफ यू टॉक अबाउट द हिस्टोन, सो हमें पता है कि लोअर जो ऑर्गेनिज्म सेल जैसे कि प्रोकैरियोट्स हैं उनमें हिस्टोन एब्सेंट होता है, वाइल जबकि आर्कीबैक्टीरिया में क्या है कि हिस्टोन प्रेजेंट है. ठीक है. एंड इंट्रोन ऑल्सो, इंट्रोन भी क्या है? बैक्टीरिया में एब्सेंट है एंड आर्कीबैक्टीरिया में प्रेजेंट है. And the most important that is habitat range. So bacteria can survive in wide habitat range, while archibacteria are restricted to extreme conditions. So these were the basic difference between the bacteria and archibacteria. There are certain things that is given in H.C. Dubey book. Let's cover that. So first is that first simple microscope was discovered by Anton von Leeuwenhoek, while the first compound microscope was discovered by Jacques Janssen and Hans Janssen. Okay. But compound microscope में certain improvements were done and that was done by Robert Hooke. Okay. Now we'll go through this chart. Okay.
So basically in this chart they have mentioned the characters, and characters के basis पे we can distinguish the main kingdoms of eukaryota. ठीक है. सो फर्स्ट कैरेक्टर इज न्यूट्रिशन. सो अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, सो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस में है? एनिमेलिया में है, देन फंजाई में है, प्रोटोजोआ में है एंड स्ट्रेम्नोपिला में है. बस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 2 में ही है, क्रोमिस्टा एंड प्लांटी में. रेस्ट सबके पास क्या है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. एंड फंजाई में हमें एक बात याद रखनी है, दैट दे हैव अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन. देन अगर हम सेल वॉल की बात करें, सो वी ऑल नो दैट एनिमेलिया में क्या होता है? सेल वॉल एब्सेंट होते हैं. ठीक. क्रोमिस्टा में क्या होगा? दे विल हैव ऑफन सेलुलोजिक सेल वॉल, बीटा ग्लूकन इसमें एब्सेंट होगा. फंजाई में वी ऑल नो दैट काइटिन एंड बीटा ग्लूकन प्रेजेंट होता है सेल वॉल में. प्लांटी में सेलुलोज एंड अदर पॉलीसेक्राइड प्रेजेंट होंगे. एंड प्रोटोजोआ में एब्सेंट होगा सेल वॉल. स्ट्रेम्नोपिला में काइटिन एंड सेलुलोज प्रेजेंट होगा सेल वॉल में. अगर हम माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे की बात करें, सो क्रोमिस्टा, प्रोटोजोआ एंड स्ट्रेम्नोपिला तीनों में क्या है? ट्यूबुलर माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे हैं. बाकी जितने भी बच गए 3, एनिमेलिया, प्लांटी एंड फंजाई, सो इन तीनों में क्या है? फ्लैटेंड माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे. सेम वे अगर हम बात करें फ्लैजुलर मैस्टिगोनीम्स की, सो फ्लैजुलर मैस्टिगोनीम्स भी किस में प्रेजेंट है? क्रोमिस्टा, प्रोटोजोआ एंड स्ट्रेम्नोपिला में. बाकी सब में क्या है? एब्सेंट है. ठीक है. होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी. So this was all about the today's lecture. If you have any query regarding this lecture, then you can write in the comment section. And thanks for watching this video till the end. And keep learning with AgriMed Easy. Have a great day.